مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ویلکم اگین. اور بات کریں گے موسم کی تبدیلی. یس، کل چل رہی تھی بلکہ 1-2 دن سے ہوائیں بہت جو ہے وہ کراچی میں بہت خمار والی ہوائیں ہیں، تیز ہوائیں ہیں، اور ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز میں یہ کہوں گی ہاسپٹلز میں رش لگ گیا ہے. چھوٹے معصوم بچے بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں آف کورس جب موسم زیادہ سرد ہوتا ہے تو اندر بلڈ سرکولیشن بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے پیرالائز کی. یس، کبھی کسی کا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، لیگ میں پرابلم ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ جو کہیں نہ کہیں یہاں سن ہو جاتا ہے، سر میں درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسی ٹھنڈی جگہوں پہ بیٹھنے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا باہر چائے پینے چلے گئے، وہ اوپر سے اوس پڑ رہی ہے، تو یہ ساری پرابلم جو زیادہ ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا بلڈ سرکولیشن میں وہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے. تو لیٹس سی آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو جلدی موسم سردی میں خاص طور پہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، تو ان کو کس طرح اپنی تھراپیز کرنی چاہیے اور کس طرح اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہمارے درمیان موجود ہیں آف کورس ایوری فرائیڈے ایک ایسا پرسن، ایک ہربل دنیا میں بے تاج بادشاہ، حکمت میں بڑا نام، طب نبوی میں بڑا نام، ماشاءاللہ بہت ہی سینئر ہیں، اور سب سے جو ان کے نصیب میں جو ایک بڑے اعزاز کی بات آئی ہے کہ ان کی 11 پشتوں سے حکمت کو جو ہے وہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے اور وہ اس کو ماشاءاللہ ابھی کمانڈ کریں، لیڈ کریں. یہاں پر موجود ہے حکمت اور طب نبوی میں بڑا نام، ہربل دنیا میں ایکوپنچر ہو یا کچھ بھی ہو، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، سب کی نالج ان کے پاس آتھینٹک ہے. تو یہاں پر موجود ہیں حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے حکیم؟ اللہ کی رحمت ہے. سردی کا موسم ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا پیارا کورنگ کیا ہوا، یہ اچھی بات ہے اپنے آپ کو کور کرنا. اور یہ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پیرالائز، فالج. جی ہاں، فالج ایک ایسا موضوع ہے جو اس موسم میں بہت خطرناک صورت اختیار کرتا ہے. اکثر لوگ فالج کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں ابھی ڈیٹیل سے ناظرین کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس وقت ہم کسی گرم کمرے میں بیٹھے ہوں جی جی اور انتہائی گرم کمرے سے اچانک ایک دم باہر نکلتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں جسم پہ لگتی ہیں تو فالج ہونے کا جو ہے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو ایسی صورت بھی فالج کا ہونا کا احتمال ہوتا ہے. فالج ہے یا برین ہیمریج ہے یعنی دماغ کی شریان کا پھٹ جانا، تو یہ ٹینشن سے اور سٹریس سے بھی فالج جو برین ہیمریج بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، کیونکہ فالج ہوتا ہی برین بلاکیج سے ہے. اگر دماغ میں کہیں بھی نسیں ایک دم سکڑتی ہیں، جیسے سرد ہوا میں آدمی گرم کمرے سے نکلا ہے اور تو فوری طور پر جو ہے وہ برین کی جو وینز ہیں اس کی سرکولیشن متاثر ہوتی ہے. ایک دم سرد اور گرم سرد سے دماغی جو ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فالج کا حملہ ہونے کا احتمال بہت بڑھ جاتے ہیں. اور فالج ہونے کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں
क्योंकि मैं आपको नाज़रीन, एक तो ये गर्मियों में भी लोगों को फॉलिज होता है, वो भी ऐसे ही होता है कि जैसे एकदम एयर कंडीशन से निकल कर जो है वो बाहर निकल जाए गर्म हवा, हाँ, एकदम चिल एसी और एकदम गर्मी धूप में चले बिल्कुल गए। सरसाम हो जाता है, दिमागी तौर पर जो है वो आदमी गैर मुतवाज़न हो जाता है। गरम ठंडा। जी हाँ। अच्छा, ये जो बाहर का है, ये तो एक बात हो गई बाहर, माशाल्लाह आपकी खुद ही इतनी नॉलेज है, मैं तो एक जनरली क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने कहा कि आउटडोर होगी ना, लेकिन हम लोग क्या कुछ खाने पीने में भी ऐसा होता है कि एकदम ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, क्या हमारी बॉडी के अंदर ये भी इफेक्ट एग्जैक्टली, होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है कि चाय पी लिया, ऊपर से एकदम ठंडा पानी पी लिया। ओह, क्योंकि कराची में तो ख़ास तौर पे ये है कि दिन में ज़रा मौसम गर्म होता है और लोग ठंडा पानी पी रहे होते हैं, हाँ, और जब शाम होती है तो इंतहाई शदीद सर्दी हो रही होती है सूप। और ठंडी हवाएं, और फिर लाजमी आता है कि वो चाय, कॉफ़ी, सूप और दीगर चीज़ें जो हैं वो, और गर्म कपड़े शुरू निकालते हैं। बिल्कुल। तो ये कराची में मौसम का भी दोहरा मेयार है नहीं, हाँ, ये कि सुबह कुछ और है मौसम और रात को कुछ और है। हाँ, ऐसा ही। तो वाकई पंजाब में मौसम सुबह भी सर्द होता है और रात में तो वाकई शदीद सर्द होता है। तो पंजाब में और KP के और वहाँ पर तो स्मोक ज्यादा होती है। इंतहाई शदीद सर्दी का ये दौरानिया चल रहा है। बिल्कुल ठीक। ऐसे में लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए कि बिस्तर से एकदम निकलते हैं, और जब बिस्तर से निकलते हैं तो बिस्तर गर्म होता है, Okay. और फौरन निकलते ही वो जो है वो, क्योंकि अक्सर लोगों को वॉशरूम जाना होता है रात को, तो वो वॉशरूम से वापस आते हुए कांप रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बिस्तर में घुस जाते हैं। तो ये भी बड़ी कबाहतें हैं हमारे। रात को लोगों को अक्सर सर्दियों में पेशाब बहुत आता है, हाँ, बिल्कुल ठीक जी है, हाँ। बार बार उठना। बार बार उठना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में रखें कि आपका जिस्म जो है बाकायदा कपड़ों से लिपटा हुआ हो। जब बिस्तर से बाहर निकलें तो सर पे टोप पहने और अपना कुछ चादर वगैरह ओढ़े, Socks पहन ताकि लें। आपका जो है इस मौसम के तमाजुद के असरात जो हैं वो जिस्म पर कम से कम हो। ओके। फिर पानी का, गर्म पानी का इस्तेमाल रखें सर्दियों में ख़ास तौर पर। गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो खून की नालियों को साफ रखता है। गर्म पानी का इस्तेमाल आपकी बॉडी को चाको चौबंद रखता है और मैदे, जिगर, मसाने के टॉक्सिन्स को निकालता है। ओके। और ये है कि आप सुबह के वक्त में ख़ास तौर पे मैं नाज़रीन बताता हूँ कि उठते ही आप जिस शहर में भी जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका उस शहर का मौसम के असरात या पानी के जो है उसके असरात से महफूज रहें। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि लाहौर से कराची लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, उनको कब्ज़ हो जाती है या मोशन लग जाते हैं। तो आप, एक बड़ा अच्छा फार्मूला है कि आप जिस शहर में भी जाएं, सुबह निहार उस शहर का पानी पी लीजिए, पेट भर के पीजिए। जबरदस्त। वो पानी जो है वो आपके जिस्म को तवाज़ुन आपका बरकरार कर देगा और आप उस शहर में जाते ही बीमार नहीं होंगे। जबरदस्त। तो चूँकि मैं शहर शहर जाता रहा हूँ, माशाल्लाह। समझे, दुनिया भर घूमा, तो सबसे बड़ा तजर्बा मुझे यही मिला कि मैं पानी पी लेता हूँ उस शहर का, और वहाँ पर फिर वो जिस्म को जब जाता है तो किसी किस्म की भी कोई कबाहत पैदा नहीं होती, यूज्ड टू हो जाता है ना कि हाँ, परेशानी नहीं होती। जबरदस्त। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको फालिज से बचाने के जो अलामात हैं, उन चीज़ों पे मैं आपको ख़ास तौर पर, एक मैंने पानी बताया, क्योंकि सर्दियों में अमूमन लोग पानी कम अज़ कम इस्तेमाल करते हैं, प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है, और खून गाढ़ा जब होता है तो जिस्म से टॉक्सिन्स नहीं निकलते। टॉक्सिन का मतलब है फासिद जहरीले मादे जो हैं, उनका इखराज कम होना शुरू हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से बारीक नसों में खून जो है वो रवानी उसकी रुक जाती है, दिमाग की नसें बड़ी बारीक होती हैं, और वहाँ से जब खून की दौरानियाँ कम होना शुरू होता है तो कोई ना कोई क्लॉट, ब्लड क्लॉट जो है वो दिमाग के हिस्से में आकर उसको रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है, और दिमाग की रुकावट की वजह से आदमी को झटके लगते हैं, और इस तरह ये मर्ज जो है वो हमलावर होता है और आपको मफलूज कर देता है और बिस्तर पे लिटा देता है। गुड। तो जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं देख रही हूँ मुझे कितनी अवेयरनेस मिल रही है कि जो हम कोताहियाँ करते हैं, और ये जो आपने कहा ना कि बिस्तर से एकदम निकल जाना और ये गर्म ठंडा पीना, ये हम लोग खुद असल में कबाते खुद हम कर रहे हो। जी हाँ जी, लापरवाही है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। ये इसीलिए अवेयर कर रहा हूँ, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मौसम में सरमा में आप बड़ा मोहतात रहिए,
बेहतरीन ग़िज़ाएँ आप खाते हैं, पाए हैं या निहारी है या ऐसा बॉन्ग का गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा पकड़ा होता पाए है, तो वो तो भी बारबेक्यू हो चलेंगे। रहा होता है, तो ये लोग अक्सर रात को खाकर सो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला जो है, ये भी अटैक का मसला होता है, इसमें गैस अटैक होता है, इसमें आपको मैदा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल जिगर ऐसा ख़राब ही, होता है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फालिज का हमला होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो अभी कम से कम जो आपकी माशाल्लाह, क्योंकि पहले तो बीमारी को डायग्नोस यानी कि रीज़न हमसे क्या गलतियाँ होती हैं वो आप निशानदेही कर देते हैं, इंडिकेशन कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बदलें, खाने पीने में क्या, उसके बाद हम मेडिसिन पे चलते हैं। ऑफकोर्स छोटी मोटी चीज़ें, जो छोटी मोटी बीमारियाँ वो तो चल जाती होम रेमेडी से, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। जैसे अभी खाने की बात आपने की, डॉक्टर साहब कम से कम खाना, चाहे नॉर्मल चाहे पैरालाइज हो या मौसम के हो, कम से कम खाना सोने से पहले कितनी देर खाना चाहिए, यानी कि उसको कितने दिन खाना खाने सोने से कबल 2 से 3 घंटे। अच्छा, उससे पहले नहीं सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। इससे पहले अगर सो गए तो ये समझे कि आप पर गैस अटैक का हो सकता है हमला, ओके, हार्ट अटैक हो सकता है ओके, और फालिज होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ओके। कुछ लोग तो खाते ही लंबी तान लेते हैं, अल्लाह रहम। आने वो बहुत जुल्म करते हैं अपने ऊपर, और मैदे पे इससे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द ओके, बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू होता है, बेली पेट निकल जाता है। ओके, ठीक। तोंद आपकी निकलना शुरू हो जाती है। और यही नहीं, इसमें बाज़ लोगों को सोते वक्त उबकाई आती है, मुंह में मिर्चें आ जाती हैं, वो मैदे से मुंह में पानी आता है, वो बहुत नाक में बाज़ बच्चों के आ जाता है, मुंह से सांस ले रहे होते हैं, नाक जी हाँ, बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ख़तरनाक कंडीशन होती है। और अक्सर लोग जो हैं वो इसमें बड़े जिसे कहा जाता है ना, बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू होते हैं, हाँ, रात को बोलना शुरू हो जाते हैं, ख्वाबों में चीखना और धड़ना शुरू हो खर्राटे, जाते यूं हैं। कहे ना, खर्राटे, खूंखार Exactly, खर्राटे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तिब्बे नबी से बहुत माशाल्लाह कुरान से बात करते हैं, तिब्बे नबी हिकमत की बात करते हैं। अब पैरालाइज की बात हो रही है, हम लोग अभी डाइट पे बात करते हैं, जैसे आप जैतून की बात करते हैं, इंजीर की बात करते हैं, खजूर की बात करते हैं। जो लोग पैरालाइज होते हैं उनके लिए ये जो है ना, ये कलवंजी जिसका जिक्र मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, आप हमेशा बात करते हैं, इंजीर हमारे लिए बड़ी अच्छी है, खजूर हमारे लिए, ये ऐसे हैं चीज़ें हैं, अनार है। लेकिन अभी हम पैरालाइज की बात करें तो ऑफकोर्स फालिज की बात करें तो हमारे लिए ये जो इस वक्त मौसम के मुनासिबत से भी है, और मैं जो अक्सर मैंने कहा जैतून का तेल जो अक्सर लोग होते हैं उसको पकाने से बेहतर है कच्चा पीने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बारे में बात ज़रा यह है रोशनी डालिए। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फालिज से बचा सकती है और जो आपको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ला सकती हैं। उसमें यह है कि जैतून का तेल है, कोई भी तेल ले लीजिए, जैतून है, ऑर्गेनिक तेल ले लीजिए। अगर जैतून नहीं खरीद सकते तो नारियल है, सरसों का तेल है, मगर ये खालिश होने चाहिए, बादाम, रोगन, ये इसका इस्तेमाल मुसलसल रखें। मालिश करें जिस्म पर। 1 चम्मच रात सोते वक्त जैतून का तेल का 1 चम्मच लीजिए, और इसी तरह सुबह उठते ही 1 चम्मच लीजिए। इससे आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और ना ही कोई ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, बल्कि ये जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे अमराज जो हैं वो तो इससे 72 अमराज जो हैं कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही शहद को पानी में डालिए और सुबह निहार शहद जो है जो इस्तेमाल कीजिए। सुबह निहार पानी का इस्तेमाल शहद से अगर होता है तो ये आपके लिए शफायाबी का बाइस बनता है। और मौसमी फल जो हैं, जिसमें आजकल जो मौसमी फल आ रहे हैं, जिसमें अनार, ख़ास तौर पर माल्टे, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि विटामिन सी की कमी जो है ये चीज़ें पूरी करती हैं, जिस वक्त आपको इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी की। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अल्लाह ने एक अपना कानून जो बनाया है उसमें उस मौसम के फल जो हैं, उस मौसम की बीमारियों और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जो हैं वो फल आते हैं। और ये फल जो है ये इनको वक्तन थोड़ा मकदार में बेशक इस्तेमाल करें, मगर इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अमूमन खाना खाने के बाद जो है फलों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे निज़ाम हज़म बेहतर होता है। अपना सलाद, ख़ास तौर पे सलाद की तरफ तवज्जो दीजिए। जब भी मेरा तो ये है कि जब मैं किसी पार्टी में, किसी
शादी में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले सलाद की तरफ देखता हूँ, सलाद की प्लेट जो है वो पहले खा लेते हैं ताकि वो अच्छे हैं जो पहले खाते हैं। सैलेड को छोड़ते हैं लोग, सैलेड यूज नहीं करते और गोश्त की तरफ वो भागते हैं, अल्लाह। और ये भी आपके लिए जो है बहुत सारी परेशानियों का बाइस बनता है, क्योंकि चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जो खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है और जिससे खून की रवानी रुकती है, और ये आपके लिए फालिज का भी एक पेश खैमा होता है, खबर होती है कि आपके जिस्म का निज़ाम जो है वो मुअत्तल होना शुरू हो रहा है, और यही वजह है कि हार्ट अटैक इसी वजह से होता है। यानी लिवर सोरोसिस जो है, यानी जिगर का जो कैंसर है, उसका भी ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से, या फैटी लिवर का हो जाना, ये भी ऐसी ही बेइतदालियों का नतीजा होता है। चूँकि आज हमारा मौजू फालिज है तो मैं ज़्यादातर तवज्जो फालिज पर ही दे रहा हूँ। देखिए, बाएं साइड का फालिज होना, अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं कि जिनको 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं फालिज हुए हुए, और बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। और मेरे पास जो है सिस्टम है, मैं चूँकि एलोपैथिक क्वालिफाई हूँ, सुनिए ना, मैंने एमडी किया है अमेरिका से, इसी तरीके से होम्योपैथिक क्वालिफाई किया है, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है एनएमडी किया, पीएचडी किया है हर्बल साइंसेज में, एक्यूपंक्चर में क्वालिफाई किया। तो तमाम तरीका है इलाज जो है, जो इंसानी सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं, उसमें दस्तरस हासिल करना एक आसान काम नहीं होता। बेशक। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने तरीका इलाज को तजवीज़ किया वो तिब्बे नबवी है, इसलिए कि ये मुकम्मल मुस्तनद जामे और बाकायदा तजर्बाती दौर से गुजरा हुआ 1400 साल की तारीख में जितना मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, इतनी तरक्की जो है वो 14 लाख साल में नहीं हुई। ये उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अमली तौर पर बताया है कि ये अमल करके कि कौन कौन सी चीज़ें इंसान की सेहत, बका, सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है, और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कैसे होता है। और इसी तरीक़ा से कुरान ने वाज़े तौर पर कई मामलात को जो उस वक्त मेडिकल साइंस के छुपे हुए थे खोल कर सामने रख दिए, और उसमें जो आपका यानी सूरह निसा में भी बहुत सारी रहमान में बहुत रहमान और पूरा कुरान ही भरा हुआ है, जो इंसान की दुनिया और आखिरत संवारने के लिए बहुत जो है, उस पर अगर इंसान अमल शुरू कर दे तो उसके लिए सलामती के रास्ते और बका के रास्ते मिल जाते हैं। बहुत प्यारी बात कही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम फालिज की मैं चाहूँगी कम टू द पॉइंट कि फालिज अगर किसी को 1 साल से वो पैरालाइज है, बॉडी उसकी बिल्कुल जाम हो गई है, बैड हो गया है, तो अब आपकी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मैं चाहूँगी, टाइम ये ना हो कि उसमें काम की बात। एक तो ये कि फालिज के मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, उसको खास तौर पे उसको दोबारा अगर ब्लड प्रेशर होता है तो फालिज का अटैक होना दोबारा सवीर अटैक होता है। ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत चल फिर रहा है तो बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाता है। ब्लड प्रेशर का खसूसी तौर पर आपको ख्याल रखना है। मैं 2-3 चीज़ें नाज़रीन बताता हूँ जो आपको बहुत सारे मामलात में जो है वो आपको घर में बैठे भी इन चीज़ों से अपने आप में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास 15, 16, 17 साल पुराने फालिज के मरीज़ आए, और चूँकि मेरा तरीका इलाज जो है वो तमाम तरीका इलाज से मुख्तलिफ है, उसमें मैं एक्यूपंक्चर की अपने इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करता हूँ, वेन्स ग्राफिक सिस्टम है, उसमें जो है मैं आपको मेरे पास मशीनें हैं जिसमें डिवाइसेस हैं और जो कि खून के दौरान को बेहतरीन कर लेते हैं। मेरा दौर जदीद और दौर कदीम के तकाज़ों के मुताबिक तरीका इलाज जो है मेरा चल रहा है। नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, वो आप लोग की कर लीजिए। हाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आपके नज़दीक सुहांजना है और करी पत्ता है। ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिन पर आप अगर बोलना शुरू कर दें, हम बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल सही तो यकीन माने 10 प्रोग्राम भी कम है। सही कह, बिल्कुल ठीक। और इसी तरह नीम लीजिए, सुहांजना 10 ग्राम, करी पत्ता 10 ग्राम, नीम यदि अगर पत्ते हैं ताज़ा हैं तो 10 ग्राम की बजाय आप 21 पत्ते ले लीजिए। ये तरीका सही है। जी हाँ, 21 पत्ते लीजिए नीम के, 21 पत्ते सुहांजना के, 21 पत्ते करी पत्ता के। इसमें छोटी इलायची के दाने डालिए 5 ग्राम, और इनको बाकायदा तौर पर बारीक कर लीजिए किसी कुंडी में, और इसकी बना लीजिए चटनी। इसमें डालिएगा 5 ग्राम कलौंजी,
2 ग्राम इसमें सौंफ और अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा। इसको आप चटनी बनाइए, चटनी बनाकर इसका इस्तेमाल सुबह दोपहर और शाम कीजिए खाने के साथ। और चटनी ना बनाएं तो इन्हीं चीज़ों को पानी में बॉईल कर लीजिए, यानी सोहंजना, नीम के पत्ते और करी पत्ता। ये खजाना है, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का खजाना इनमें भरा हुआ है। ये आपको फॉलिज के अटैक से मजीद बेहतर आप बेहतरी की तरफ लाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर, आपका जिगर, मैदा, आंतों की इस्लाह करेंगे, ब्रेन ब्लॉकेज खोलेंगे, खून की नालियाँ साफ करेंगे। और इसका कहवा जो है सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ जो है मैं एक आपके पास आता हूँ कि यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मुर्गी के पंजों की यखनी बेहतरीन यखनी कसम से बहुत बेहतरीन, और बहुत बेहतरीन, इसी सच कह रहे तरह हैं। बकरे का जो है हड्डियों का सूप है, गाय के हड्डियों का सूप है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और यखनी में आप कॉर्न डालिए, यानी मकई के बीज दाने डालिए, जिसे कॉर्न सूप कहते हैं, वो बनाइए। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और पतला यखनी जो है, पतली यखनी जो है ख़ास तौर वो पर बेहतरीन वो है। बहुत लाजवाब चीज़ है। इस मौसम में आप सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में यखनी पीजिए। और यखनी में जो चिकनाई आती है दादी, तो उससे घबराइए ना, क्योंकि वो नेचुरल जो है चिकनाई है, वो आपके जिस्म में तकलीफ नहीं देगी, बल्कि आपकी आंतों को और खून की नालियों को भी खोलने में बुनियादी किरदार अदा करेगी। सांस का आर्जा अक्सर लोगों को हो जाता है, और ये सांस का, ये दमे का अटैक भी फालिज की अलामत बनता है। बेहतरीन। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा ना पंजे की, हम लोग जरा सा घबराए यार, ये पंजों की, चिकन के गोश्त की कोई यखनी नहीं होती है, बेसिकली पंजों की ही यखनी होती है। आप कभी उसको ना ठंडा करके देखिएगा तो वो कैसे उसके अंदर जेल होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल जैसे गाय के पाए हैं, उसका देखिए, बकरे के पाए हैं, ओरिजिनल उनका ऑयल है। तो इनके पायों का सूप जो है ये आपको बहुत तवानाई पर और हड्डियों में होता है बेसिकली। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसका भी फिश का भी, क्योंकि मौसम है और इसके जो पैरालाइज हैं उनके लिए फिश और उनके सर जो भी है। हाँ जी, मैं अभी इधर आ रहा हूँ। देखिए, एक तो ये कि मछली जो है वो आपको कोशिश करें कि आप ग्रिल हो या स्टीम में बने। वाह। उससे ये होगा कि तली हुई मछली में चिकनाई, ऑयल जो है वो नुकसान देता है, जबकि उसके मुकाबले में ग्रिल की हुई यानी सिकी हुई मछली और आपकी स्टीम में बनी हुई मछली आपके लिए बहुत लाजवाब बेहतरीन रहेगी। हल्का मसाला लगाइए और तेज़ मसाले ना इस्तेमाल करें। मिर्च मसाले जो हैं ये भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ओके। और इसी तरह मेरे पास जो है, जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, बाकायदा ट्यूना फ़िश ऑयल है। अच्छा, ये ट्यूना फ़िश जो है ये बड़ी ताकतवर मछली होती है कि जो राबशार में या चश्मों में वो तो अपोजिट चढ़ती है, नीचे से ऊपर चढ़ती है। बड़ी बात है। और ये बड़े कीमती मछली है, बहुत नायाब है। इसका मछली का ऑयल जो है वो हमने हमारे पास मौजूद है, जो कि टोना फिश। जी, टोना फिश, जो बहुत दिनों बाद नाम लिया फालिज। जी हाँ, क्योंकि ये मौसम आया ना टोना फिश का। और नहीं, वैसे जो लोग फालिज के लिए जो प्रॉब्लम है तो उनके लिए बेहतरीन। जी हाँ, ये कैप्सूल्स भी तो हैं आपके पास? जी हाँ, इसकी जो है ना, इसकी कैप्सूल्स है। और ये जोड़ों के दर्द के, फालिज के मरीजों के लिए फौरी तौर पर रिलीफ देता है। फालिज के पुराने मरीज जो हैं वो ख़ास तौर पर परेशानी लाहक रहती है, तो मोहताजगी जो है वो उनके लिए बड़ी अज़ियतनाक हो जाती है। तो इस तरह जो है ये बड़ी जल्दी रिकवर होने वाला मामला होता है कि जो अगर फौरी तौर पर फालिज के मरीज़ जो हैं रब्ता कर रहे हैं हमसे, तो हम उनको बाकायदा तौर पर ऐसी अद्वियात जो हैं कोरियर के ज़रिए भेज देते हैं, जो कि घर बैठे उनकी मालिश भी हो रही होती है, अद्वियात का इस्तेमाल भी होता है। और जो मेरे करीब के लोग हैं जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं, वो बाज़ाब्ता खुद आकर बाकायदा इसकी थेरेपी होती है, जो कि मशीन्स पे दी जाती है। और इससे बड़ी जल्दी दिनों में आदमी पुराने से पुराना फालिज का मरीज जो है रिकवर हो जाता है, अपने टांगों पे खड़ा हो जाता है। लोग उसको गोद में उठा के लाते हैं और चंद दिनों में वो खुद ही चल कर आते हैं। ग्रेट, ये तो दुआओं वाला काम है डॉक्टर साहब। ये तो, और आपके पास एक बड़ी अच्छी डिवाइस भी है बेड की, जिसपे बाकायदा जो है ना ब्लड एक्टिव हो जाता है, आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं।
وہ ایک تھراپی ہے ڈاکٹر صاحب, اس جی کے ہاں بارے جی میں ہاں جی ہاں بریف کیجیے بالکل, گا. اس میں جو ہے وہ آپ کی ریڑھ کی مہروں کے جو پرابلمز ہوتی ہیں, گردن کے مہروں کا پرابلم ہوتا ہے, اور جگہ یہ خاص طور پہ L5, L7, L4, L3 میں لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا جھکنا یہ بڑا اذیتناک ہو جاتا ہے. تو ایسے جو 4-5 تھراپیز میں آدمی پرانے سے پرانا جو ہے مرض جو ہے اس کو کیور کر دیتے ہیں. گردن کے مہروں میں آج کل پٹھوں میں بڑا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, لوگ تکیے بڑے اونچے اور رکھتے ہیں یا ایک سائڈ پہ ایک ہی سو رہے جگہ سو کے ہوتے بھول ہیں, جاتے جس ہیں. کی وجہ سے جو ہے وہ اعصابی تناؤ, گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ, یہ سردیوں میں ٹھنڈا گرم کا اثر یہ بڑی جلدی لوگوں کو ہو رہا ہے. اوکے, تو ایسی صورت میں ہمارا عسکری واٹر ہے, یہ آپ منگوائیے, یہ مالش کیجیے. فالج کے مریض, گردن کے پٹھوں کے مریض فالج, اور اسی طرح یہ آپ کو 101 بیماریوں کی ایک دوا ہے. پینے سے معدے کا السر, آنتوں کا انفیکشن, جگر کا پرابلم اور ورم, اندرونی ہر قسم کا ورم, انفلیمیشن, عسکری واٹر کی بات کر رہے ہیں. واٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ ناظرین سامنے اگر نظر آ آپ رہا ہے. چاہتے ہیں حکیم عسکری آپ کے گھر میں آ جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں, اور ہر وقت 24 آور عسکری صاحب آپ کے ساتھ رہیں, تو آپ ان کا عسکری واٹر اپنے پاکٹ میں رکھیں, اور اوپر والی پاکٹ میں رکھیے گا تو اسے لگے گا دل کے قریب ہے. ریئلی میں سچ کہہ رہی ہوں, میں نے ان کے جو عسکری واٹر بی, میں سچ بتاؤں بی پریکٹیکل, میرا کبھی مجھے نزلہ ہوا ہے تو میں نے ایسے ہلکا سا, بس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو بس یہاں ہلکا سا لگا دو, آپ کا پورا دماغ کھل جائے گا. اور 2 گھٹ جو ہے نا وہ پانی کے لیں, اور اس یا آدھا کپ لے لیں, اس میں 2 قطرے ڈالیں, وہ اتنا اس کا اروما ہوتا ہے, اسے گارگل کریں, 2 گھٹ پی بھی لیں, یقین کریں آپ کا گلا بھی. شہزاد بھائی آپ نے لیا اس کا کچھ 2 قطرے لیے پچھلے سے؟ اچھا میں کہہ رہے ہیں لیے. اچھا یہ کیسا, اس کو اگر رومال پہ بھی ہلکا سا یوں لگا کے سونگے نا تو آپ کے دماغ کی نسیں تک کھل جاتی ہے. ریئلی ڈاکٹر صاحب, نزلہ, کھانسی, بخار, ہر قسم کی ایمرجنسی میں وامٹنگز ہو رہی ہیں, موشن لگ گئے ہیں, پائلز کا پرابلم ہوا ہے, یا کہیں دانے نکل آئے, زخم ہو گیا, کسی جانور یا کیڑے نے کاٹ لیا ہے, ایون کہ آپ کو محسوس ہو, آپ کو دیکھیں ڈینگی جو کاٹتا ہے نا, تو یہ ڈینگی جو ہے جہاں کاٹتا ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر نشان بھی چھوڑتا ہے, اور اس قدر خارش شروع ہوتی ہے کہ آدمی جتنا کھجاتا ہے وہ ڈینگی کے جو ہے جراثیم اتنے زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باڈی میں بڑی جلدی پھیلنا شروع ہوتے ہیں. آپ فوری طور پر وہاں پر عسکری واٹر لگا لیجئے, آپ ڈینگی سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے چند قطرے منہ میں پی لیجئے, بخار ختم ہو جاتا ہے. ماتھے پہ لگائیں تو سر کا درد اور ٹیمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کانوں میں لگائیں کہ کانوں کا ہر قسم کا انفیکشن, کم سننا, اور یا کانوں میں کسی قسم کا پس یا درد کا ہونا ہر قسم کا, وہ فوری ریلیف کر دیتا ہے. اسپائنل کارڈ, سروائکل پہ لگائیں تو ریڑھ کی ہڈی کے مہر میں جو پرابلم آتی ہے, درد ہوتا ہے کمر کا, درد ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک 100 بیماریوں کی ایک دوا ہے, اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈاکٹروں حکیموں کے دواخانوں سے آپ کا جو نجات مل جائے گی. یقین پیرالائز کے پیشنٹ جو ہیں اس کے مساج کرتے ہیں, پیرالائز پٹھے جو ہم بالکل فوری طور پر یہ روانی کر دیتا ہے, فالج کے مریضوں کو بڑی جلدی کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی دوا نہیں ہے, یہ ہمارا ایک جو ہے 1200 روپے کا اس کا ریٹ ہے. دکھائیں وہ کہاں لائیں. اچھا سب سے آگے پڑی ہوئی ہے, سب سے آگے پڑی ہوئی ہے, کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے. چھوٹی سی ڈبیا, ٹک ٹک کرے, چلتا مسافر پھر چل پڑے, گرتا مسافر پھر چل پڑے. اچھا یاد آ گیا پرانا کبھی ہم لوگ کیا کہتے تھے. تو یہ جتنی بھی پروڈکٹ میری ناظرین آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ تمام پروڈکٹ جو ہیں یہ اس وقت ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے, یعنی یہ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہیں. آپ کو جا کر سٹورز پہ اس کو تلاش نہیں کرنا, اور اس کو آپ کوریئر کے ذریعے ہم سے باقاعدہ آرڈر دیں اور یہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. سر ایک اور بات ان کا ایڈ کریں, خاص طور پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو چھوٹے معصوم بچے ہیں نا, خدا کے لیے میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ ہر وقت اپنے گھر میں رکھیں. چھوٹے معصوم بچے ہیں, وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا, آپ ہلکا سا ان کی چیسٹ پہ ایک قطرہ, ایک ہلکا سا قطرہ یوں لگائے گا, ان کو جو بچوں کا ناک بند ہوتا ہے نا, ناک کا بند ہونا, سانس کا عارضہ ہو جانا, جسم کھڑ کھڑ کرتا ہے, بالکل بالکل, بچے بے چین رہتے ہیں. کسی پھر یہ کہ بعض اوقات پوٹی والی جگہ پر بھی چنونے جو ہو جاتے ہیں, بچے اس سے بہت روتے ہیں. اس کی ایک
ड्रॉप 2 ड्रॉप जो है कॉटन बड पे लगा के जो है मक्कद पे लगा दीजिए, बच्चे फौरन बिल्कुल। सुकून में आ जाते हैं। स्टूल पास करने की और जगह पे आप उनको- लगाएंगे तो उनके ठीक जो है है। वो चलूने भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही पैम्पर्स जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर्स बांधती हैं, बच्चों को 24 घंटे पैम्पर में रखती हैं। नाज़रीन, ये भी बहुत गलत बात है कि बच्चों को पैम्पर में पैक करने का मतलब यह है कि उसके जो नस्वानी या मर्दाना अज़ा हैं वो डेवलप नहीं होते, वो बहुत इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उससे जो है बच्चों को जब वो सने बलूगत में आते हैं तो बहुत सारी कबाहतें उनकी जिस्मानी साख्त में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये पैम्पर जो है ये ख़ास तौर पर लंगोट आप बांधे, जो बच्चों को बड़ा ढीला होता है लंगोट, और जब कहीं बाहर जाएं तो पैम्पर का इस्तेमाल रखें। इस तरह जो है बच्चे की ग्रोथ और बच्चा नॉर्मल लाइफ में आता है। मैंने अक्सर देखा है कि बड़े रैशेज हो जाते हैं, वो कहते हैं बच्चों को क्या करें, मैं कहा 2-3 खतरे अस्क्री वाटर के आप किसी भी नारियल के वगैरह में तेल में, डाल दो। जैतून के तेल में मिलाकर, सरसों के तेल में मिला के बिल्कुल, लगा दें और बड़ी जल्दी बच्चे को वो हीलअप हो जाता है और अपनी उसके रैशेज ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चेहरे पे दाने, दाग धब्बे, झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। अस्क्री वाटर जो है चंद कतरे आप उसको जैतून के तेल या नारियल के तेल पे लगा लें तो चेहरे के दाने, झुर्रियाँ, झाइयाँ वगैरह ये भी मुसफ़ा हो जाती हैं। आज हमने अस्क्री वाटर पे खासा नहीं ये है प्रोग्राम ही, कर ये दिया है। मैजिक ड्रॉप है। अरे Exactly. ड्रॉप है, हल्के से कतरे हैं, जैसे कान में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कान में दर्द है, गले थॉट आपका बहुत अक्सर इस मौसम में गला बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट है वो एक मर्ज के लिए नहीं है। इसमें हमारी मैजिक मल्टी टैलेंटेड प्रोडक्ट मैजिक क्रीम है जो कि फालिज के मरीजों के लिए नेमत खुदाबंदी है। सर वो उठा के जरा मैं हाँ, चाहती हूँ मेरे ख्याल है ये बताएं। सामने रखी हुई है, ये मैजिक क्रीम जो है। ये अच्छा ठीक है, आपकी- ओके, ये वाली, देखिएगा ओके नाज़रीन, डन ये हो सामने गया, है, ओके ये है। ओके, ये वाकई में मैजिक जी हाँ, तो ये जो है आपकी मैजिक क्रीम जो है ये एक ऐसा हैरत अंगेज फार्मूला है जो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। ठीक है। और इस पर जो है बड़ी मेहनत हुई और इसमें जो अद्वियात हमने इस्तेमाल की हैं वो हर्बल सुपर हर्ब्स हैं, ठीक है। यानी दुनिया की कीमती तरीन अद्वियात, किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। बड़ी सलाहियत के साथ ये जिस्म पे असर करती हैं, दिमागी ब्रेन ब्लॉकेज खोल देती हैं, चेहरे के पे जो मल्टी कलर्स आ जाते हैं उन सब मल्टी कलर्स को ख़त्म करके आपकी बॉडी पर एक यानी कलर आ जाता है और आपका रंग जो है अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। पैरालाइज लोगों के लिए क्या है ये? जिन लोगों को पैरालाइज है वो पैरालाइज पेशेंट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड पे लगाते हैं, गर्दन के मोहरों पे लगाते हैं, इसी तरह ब्रेन के ये टेम्पल्स पे इस्तेमाल होता है और ये ख़ास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम इसको बताते हैं कि ये लगाएं। ये जिस्म में फौरी तौर पर जो है जैसे अब हम ये कहते हैं शायरक पे लगाएं, तो जैसे ही शायरक पे लगता है तो ये खून में हल हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी बारीक तरीन इसकी जो है वो पिसाई होती है, इतनी पिसाई होती है कि जैसे आप लगाएंगे तो फौरन ये जिन से पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ पोर्स में जाकर ये खून में हल हो जाता है और खून में से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है जो कि ब्लड को नॉरिश करता है, खून को साफ़ कर देता है, खून की जहाँ जहाँ जाता है खून की नालियों को खोलना शुरू हो जाता है, उन नालियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, उसमें नालियों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और खून का दौरान जो है यूँ नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीक़े से ये कैंसर के मरीज़ों को हमने इस्तेमाल की, कैंसर के मरीज़ों का उनका ज़ख़म बड़ी जल्दी ऐसी हैरत अंगेज़ तरीके से उन्होंने रिकवर हुआ कि लोग हैरान हुए कि ये हम समझते थे कि महीनों का इलाज है, ये तो हफ्तों में ठीक हो गया। तो इस तरह ब्रेस्ट कैंसर का है या आपके गैंग्रीन है, उसके लिए जी हाँ एक्जिमा है, गैंग्रीन है, मैं कहता हूँ ख़तरनाक तरीन बीमारियों में ये दवा जो है ये शफा याबी का बाइस बनती है हमारे। और ये कहीं मिलती नहीं है डॉक्टर साहब, ये भी जी बता बिल्कुल, इसको बाजार में स्टोर्स पे तलाश ना कीजिए क्योंकि हमने जब भी देखा है कि मार्केटिंग, अभी हमने मार्केटिंग नहीं की लेकिन इस हमारे नामों से मुख्तलिफ स्टोर्स पर जो है वो अद्वियात आनी शुरू हो गई। अच्छा जी हाँ, अस्क्री हर्बल की अद्वियात फलाना स्टोर, लोग मुझे बताते हैं कि जी आपकी फलाना दवा जो है तो स्टोर पे मिल रही है। तो मैं ये कहता हूँ बेटा हम मार्केटिंग इसीलिए नहीं करते अभी तो, क्योंकि 2 नंबर चीज़ें फौरी तौर पर मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं जो कि आपके मेयार को भी गिराती हैं और ये लोग एक्सपायर अद्वियात भी सेल करते हैं। तो हमें आप फ़ोन कीजिए और अपनी पूरी डिटेल बताइए। आपके पॉकेट में अगर मोबाइल रखा हुआ है
फौरी तौर पर निकालें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और मुझसे बराह रास्त ऑनलाइन कैमरा में मुझसे बात कीजिए। मैं बराह रास्त खुद फ़ोन उठाता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट्स पे इतना वो नहीं करता कि मेरे असिस्टेंट उठाएंगे, वो टाइम लेंगे या देंगे, क्योंकि मेरा मरीज़ जो है वो कोशिश करता है, चाहता है कि मेरी डायरेक्ट हकीम साहब से बात हो जाए, ताकि वो अपने दुख दर्द परेशानियों का बराह रास्त हमसे जब जिक्र करता है तो उसको सुकून तसल्ली मिलती है, और उसको जो कुछ भी हम उसको रेमेडीज़ बताते हैं, हदायत देते हैं, उस पर वो अमल शुरू कर देता है फौरी तौर पर। तो कोशिश ये होती है कि इसको कि लोग तकलीफ़ और दर्दों में मुब्तला होते हैं, और उनका दर्द दुख बांटना जो है ये बहुत बड़ा सवाब है, और इससे आपकी तकलीफ़ें भी ख़त्म होती हैं। खुशियाँ बांटने वाला हमेशा खुश रहता है। हाय हाय, बहुत दो लोगों के काम आने वाले के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके काम कर रहे होते हैं। समझे ना, रिस्क बांटने वाला कभी भूखा नहीं सोता। बेशक। तो देखिए कि आप दुआएं दें, दुआएं लेने वाला जो है हमेशा खुश व खरम जिंदगी गुजारता है। तो ये इन चीज़ों पर आप अमल शुरू कर दीजिए, आपकी रूहानी बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और जिस्मानी बीमारियां तो खुद ब खुद जो है जिस्म से भाग जाएंगी, जब आप यकीन और ईमान की ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझते हैं, और इसके साथ वो सलूक करते हैं जो कायनात फितरत ने बताया है कि ये जिस्म, ये इंसान का वजूद जो है ये खलीफातुल अर्द है, और इसे खलीफातुल अर्द के साथ साथ इसे अशरफुल मखलूक भी बनाया है। आप अपने अंदर झांके देखें, आपको बहुत सारी खूबियाँ अपने अंदर नजर आएंगी। उन खूबियों पर आप काम शुरू कीजिए, यकीन माने आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। और अल्लाह पाक ने यकीन करें इंसान को सबसे बड़े मकाम पे रखा है, अशरफुल मखलूकात बनाया, और सबसे ज्यादा, बल्कि इतनी सारी अल्लाह की मखलूक है जो में नजर नहीं आती, समंदर में, पानी में, हवा में, जिन्नात, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें सबसे ज्यादा एहसास। हमारी एक दवा है जो कि औलाद के हवाले से हमारे ये टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, सिल्वर कलर की गोलियां हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त तो मैं कैमरे को कहूँगा कि वो अगला तो मैं तो करीब नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग बांझपन और औलाद पे खवातीन के इंटरनल प्रॉब्लम इन मर्द के कर लेंगे हम टॉपिक ना। मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं। मैं एक गुज़िश्ता 20-21 साल पहले अच्छा मैंने इसी मौजू पर प्रोग्राम किया था, और उस पर ये हुआ कि लोग 8-8, 9-9, 10-10 साल पुराने जो बे औलाद जोड़े थे रब्ता किया वो उन्होंने रब्ता किया। एक तो थे कि उन्होंने कहा जी 19 साल हो गए मेरी शादी को। अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत है कि 80% मरीज उनके यहाँ ट्विंस पैदा हुए। बड़ी बात, ये मुझे सच की खबर मालूम। बिल्कुल, आज वो बच्चे जो हैं मुझे मिलते हैं, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का है, ट्विंस के हवाले से। तो वो फिर बताते हैं कि हमें जो है यानी मुलाकात होती, उनके वालिदैन बताते हैं कि आपके इलाज से ये बच्चे पैदा हुए। असल में हकीम साहब न सिर्फ कराची बल्कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी विजिट करते हैं। जाते जाते नाज़रीन को मैसेज दे दें कोई काम की जो ऐसी जो जी हाँ बिल्कुल, मैं टाइमिंग बता दें। ये तो आपने कह दिया कि मैं विजिट करता हूँ, पर इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर मुल्क गिर दौरा करता हूँ 1 महीने में, 2 महीने के बाद, 1 से 2 महीने में जब मेरी अपॉइंटमेंट्स कवर हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो नाज़रीन बात ये है कि ये हर जुमे का प्रोग्राम जो है ये वीनस चैनल पे हमारा चलता है, और वीनस चैनल की खसूसियत ये है कि ये इंसानी सेहत, बका, इंसानी मसाइल पर आवाज़ उठाता है, और लोगों तक उनको वो चीज़ें फराहम करता है कि जो दीगर चैनल्स पे नहीं होते। मैं मशकूर हूँ इस चैनल का जिसने आज हमें आप तक रसाई पहुंचाई, और हमारी अच्छी बातें आप तक पहुंची, और आप जो मैंने बताया है इस दौरानिया में उस पर आप अमल शुरू कर दीजिए। और कोई मसला हो तो मुझसे, मेरे फ़ोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर रब्ता करके अपना मसाइल जो हैं वो हल करें। और इंशाअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह मैं हर जुमे को इस वीनस चैनल पर आपके सामने होता हूँ। थैंक यू हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नाज़रीन हम लोग जब नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे तो हम स्पेशली बांझपन पे बात करेंगे, बे औलादी पे। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते हकीम अस्करी साहब का स्पेशल पैकेज देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं।
ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری